أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا علی حسن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ہر سبق کو آپ اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ پلیز جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان تک میری ویڈیو شیئر کریں۔ آج ہم پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے۔ پہلے میں اس آیت کی قرات کروں گی، پھر میں آپ کو تجوید کے ساتھ اس آیت کے قواعد سمجھاؤں گی۔ چلیں تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت کے ساتھ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ چلیں اب میں آپ کو اس آیت کے قواعد سمجھاتی ہوں۔ ہا کے اوپر پیش، اس ہا کو ہم سینے سے ادا کریں گے، یہ ہا سینے سے ادا ہوگی۔ ہا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کے اوپر زبر ہے، واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لام کے اوپر شد ہے، تشدید ہے۔ 3 دندانے والی حرکت کو شد کہتے ہیں، تشدید کہتے ہیں۔ لام کے اوپر شد ہے، تشدید ہے۔ تشدید والا حرف ہمیشہ 2 بار ادا کیا جاتا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور بغیر کھینچے ادا کیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر رک کر ادا کیا جاتا ہے اور 2 بار ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، ول یہ پہلے والے حرف کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھا، لام کے اوپر زبر، یہ اب ہم اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر لا، ہو ول لا، زال کے نیچے زیر، زال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن کے ساتھ ہم زال کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یا ساکن کے اوپر جزم ہے۔ جزم والا حرف ہمیشہ 1 بار ادا کیا جاتا ہے اور اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ جزم کا کام ہے ملانا۔ زال کے نیچے زیر، زال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، زال کے نیچے زیر، زال کو ہم یا ساکن سے ملائیں گے، یہ یا مدہ ہے، اس کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ زال یا زیر یا زی، هو الذی۔ خا کو ہم موٹا پڑھیں گے، خا کی آواز کھردری ہوتی ہے، خا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خا کو ہم موٹا کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ خا حروف مستعلہ میں سے ہے اور قاف بھی حروف مستعلہ میں سے ہے، قاف کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ خا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، خا۔ لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لا۔ قاف کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، قا۔ جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اس قاف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ بنا نقطوں والی کاف کو ہم باریک پڑھیں گے اور جس قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ خلق،
लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दिद आ रहा है। जब साकिन हरफ के बाद मुशद्दिद हरफ आता है, तशदीद वाला हरफ आता है, तो हम साकिन हरफ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाले हरफ को पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। और यहाँ मीम मुशद्दिद हरूफ यरमलून में से आ रहा है, तो यहाँ हम बिला गुन्ना इदगाम करेंगे। एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे और इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे। ला काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। कुम मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर भी अदा करेंगे और यहाँ एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। लाकुम मा, फा के नीचे ज़ेर, आगे या के ऊपर कोई आराब नहीं है तो या को हम नहीं पढ़ेंगे और दरमियान में हमज़ातुल वसल आ रहा है और लाम के ऊपर जज़म है। जब हम फ़ा को लाम के साथ मिलाएंगे तो दरमियान में हमज़ातुल वसल ख़त्म हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा। फ़ा के नीचे ज़ेर, फ़ा को हम लाम के साथ मिलाएंगे, लाम साकिन के साथ मिलाएंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे फिल। फ़ा लाम ज़ेर फिल। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम रा के साथ मिलाएंगे, रा को भी हम मोटा पढ़ेंगे और गौद को भी हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा भी हरूफ मुस्तआला में से है और गौद भी हरूफ मुस्तआला में से है। फ़ा को हम लाम के साथ मिलाएंगे फिल, हमज़ा को हम रा के साथ मिलाएंगे, हमज़ा रा ज़बर अर, गौद के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ज़ी। फ़ा को लाम के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे, हमज़ा को रा के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे, गौद के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे फिल आरोज़ी। जीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, मीम के नीचे ज़ेर है, आगे याए साकिन है, तो याए साकिन मीम को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे या के ऊपर, क्योंकि या के ऊपर जज़म है तो हम मीम को या के साथ मिलाएंगे, याए साकिन के साथ मिलाएंगे। ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। जिम के ऊपर ज़बर जा, मीम या ज़ेर मी, ये याए मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे जा मी। आइन के ऊपर तनवीन है, दो ज़बर हैं, आगे सा आ रहा है। हरूफे इख्फा के 15 वर्ड में से सा आ रहा है, तो यहाँ हम इख्फा करेंगे और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। नून साकिन और तनवीन का जो इख्फा होता है वो इख्फा हकीकी होता है। जब इख्फा हरूफ इख्फा के 15 वर्ड में से मोटा वर्ड आएगा तो हम मोटा इख्फा करेंगे, अगर बारीक वर्ड आएगा तो हम बारीक इख्फा करेंगे। जामी, आइन के ऊपर तनवीन है, दो ज़बर है, तो यहाँ हम इख्फा करेंगे। कौन सा इख्फा करेंगे? इख्फाए हकीकी के साथ पढ़ेंगे। अंग, सा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे सू। सा के ऊपर पेश, सा के ऊपर पेश, सा को हम मीम के साथ मिलाएंगे, मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और यहाँ एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे और मीम मुशद्दिद को हम सीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि सीन साकिन है, तो हम मीम को सीन के साथ मिलाएंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। सा के ऊपर पेश, सा को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। तशदीद वाला वर्ड हमेशा दो बार अदा किया जाता है। कैसे दो बार अदा किया जाता है? एक बार अपने से जो पहले वाला वर्ड होता है उसके साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक। जैसे सा मीम पे तुम, मीम ज़बर मा, तुम मा। अब मीम को हम क्योंकि सीन के साथ मिलाएंगे, सा को मीम के साथ मिलाएंगे, तुम मीम सीन ज़बर मस, तुम मस, और सीन में सीटी होगी तुम। यहाँ एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे और सीन को बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे तुम मस ता। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है और ये मद्दे मुनफसिल जायज़ है, इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। 2.5 अलिफ की मिकदार भी खींच कर अदा कर सकते हैं और 3 अलिफ की मिकदार भी खींच कर अदा कर सकते हैं। तावा सुम्मस्तवा,
या के ऊपर कोई अराब नहीं है तो या को हम नहीं पढ़ेंगे। हमजा के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे ई। लाम के ऊपर ज़बर, आगे फिर ये जो या है इसके ऊपर भी कोई अराब नहीं है और हमजा के ऊपर भी कोई अराब नहीं है, इसलिए हम लाम को सीन के साथ मिलाएंगे। सीन के ऊपर तशदीद है और सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। जब हम सा को अदा करेंगे तो सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जब हम सीन को अदा करेंगे तो सीन पर सीटी की आवाज़ आएगी। ई लस सा, ई लस। अब पहले वाले वर्ड के साथ हमने मिलाकर पढ़ा, अब सीन अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। ई लस सा। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली के ऊपर बड़ी मद है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब। कलमा एक है, उसी कलमे में असली हमज़ा आ रहा है तो हम इसको 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर अदा करेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। इलस्समाई। फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन को हम वाव के साथ मिलाएंगे और वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। फसव। फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। सीन को वाव के साथ मिलाएंगे, सीन वा ज़बर सव। ये आप पहले वाले हर्फ के साथ हमने मिलाकर पढ़ा, सीन वाव ज़बर सव। अब हम इसको इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। वाव खड़ा ज़बर वा, फसव्वा। आगे हा के ऊपर पेश है, हा को हम नून के साथ मिलाएंगे। नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे और इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हुन्ना और बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन को हम बा के साथ मिलाएंगे और बा क्योंकि हरूफे कलकला में से बा आ रहा है, क़ाफ त्वा बा जीम दाल। क़ाफ त्वा बा जीम दाल हरूफे कलकला के 5 वर्ड हैं। हरूफे कलकला के इन 5 वर्ड में से अगर कोई भी वर्ड आ जाएगा साकिन हालत में तिलावत के दौरान तो वहाँ छोटा कलकला होगा, वहाँ हम कलकला करेंगे। और कलकलाए सुगरा होगा, छोटा कलकला होगा और डबल साउंड आएगा। सीन बा ज़बर सब, आइन ज़बरा सब आ और बगैर खींचे पढ़ेंगे। इनके ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। सब आ। सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। वाव के ऊपर भी खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ता के नीचे ज़ेर है, जैसे सा मा वा। ता के नीचे 2 ज़ेर हैं, तनवीन है, ऊपर त्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है तो ये दोनों हरकत वक़फ़ की सूरत में ख़त्म हो जाएंगी और ता साकिन हो जाएगा। तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। वक़फ़ की सूरत में जो भी वर्ड हो उसको हम साकिन कर देंगे। वक़फ़ की सूरत में वो वर्ड साकिन हो जाता है। समावात। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। हा को सीने से अदा करेंगे, हा के ऊपर पेश हु बगैर खींचे। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाहु वाह। बा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। काफ के ऊपर पेश, आगे लाम के ऊपर तशदीद है और काफ को हम लाम के साथ मिलाएंगे। काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली कुल्ली बी कुल्ली। शीन की आवाज़ जो है वो फैलती हुई महसूस होती है। शीन को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे। शीन या ज़बर शई और ये याए लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। शई। हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर हैं, आगे ऐन हरूफे हल्की में से आ रहा है तो यहाँ हमज़ा का इजहार होगा। शई इन। अगर हम शई इन पढ़ेंगे तो गुन्ना होगा, अगर हम शई इन पढ़ेंगे तो इख्फा होगा। अब क्योंकि ऐन हरूफे हल्की में से आ रहा है तो यहाँ हमज़ा का इजहार होगा, इसको हम ज़ाहिर करेंगे, ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे। शई इन नहीं करेंगे, शई इन करेंगे। कैसे करेंगे? शई इन।
یہ یائلین ہے، اس کو نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے. یہاں حمزہ پر ہم اظہار ہوگا، اظہار کریں گے، سوری، حمزہ پر ہم اظہار کریں گے، یہاں حمزہ پر اظہار ہوگا. شیئن، عین کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے. لام کے نیچے زیر ہے، آگے یائے ساکن ہے، یہ یائے مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. لام یا زیر لی، علی، عین کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. علی. وقف کی صورت میں میم کی دو پیش ختم ہو جائیں گی اور میم ساکن ہو جائے گا. یہ وقف ہوگا وقف بالاسکان اور یہ مد بنے گی مد عارض لی سکون. وقف کی صورت میں ہم اس کو 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں، اور بنا وقف کے ہم اس کو یائے مدہ کو 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. چلیں آپ کو اب میں ایک بار پھر ریوائز کروا دیتی ہوں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اس سبق کی مشق بار بار کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے ساتھ میں جلد ہی آپ سے مخاطب ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.